the next video of linear pair of equations. In this video, we will learn about solving of the equations using any of the methods, since cross multiplication method is not in the CBSE syllabus. So we are not doing cross multiplication method, but we can do any of the methods which I have taught you before. That is equating the coefficient method or substitution method. Graphical method is very lengthy, so don't do it until unless वो mention है कि graphically ही solve करना है. तो चाहे आप substitutions use करो, चाहे आप equating the coefficient method use करो, that is elimination method. So personally my favorite is elimination method, क्योंकि उसमें error होने के chances जो हैं वो थोड़े कम होते हैं और थोड़े जल्दी question solve हो जाते हैं. So which of the following pair of equations has unique solution, no solution और infinitely many solution? आपको again condition पता है, हम already पहले videos में कर चुके हैं. अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है तो it is unique solution. Right children? अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है, so it is infinitely many solutions. This is the sign of infinite, so infinitely many solution. और अगर a1 by a2 is equal है b1 by b2 के and is not equal to c1 by c2 के, then it is no solution. Right? This is how you will find it out. Now you can check in any of the question. जैसे first question करना है तो आपको पता है a1 by a2 means coefficient of x. Coefficient of x पहली equation का 1 है, दूसरी equation का 3 है. Similarly b1 by b2 जो है पहली equation में -3 है, दूसरी equation में -9 है. Simplify करो, आंसर कितना आया 1/3. अब a1 by a2 इक्वल टू आया b1 by b2 के, यानी कि मुझे c1 by c2 भी निकालना पड़ेगा. चेक करो क्या आएगा, -3 by -2. सो अगेन सिंप्लीफाई करो 3/2. तो आप चेक कर लीजिए आपका तीनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला. a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, hence it is no solution. Right? Similarly you will solve all the other in the same way. अगर यूनिक सोल्यूशन आएगा तो आप फाइंड करोगे, तो यूनिक सोल्यूशन किस में आएगा आपको दिख ही रहा होगा. 2/3 यानी कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2. राइट? सो दिस इज यूनिक सोल्यूशन. अब क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन है तो सॉल्विंग कैसे करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. मतलब पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, elimination method. Right? So this is 4x plus 2y and 5 2s are 10. This is 3x plus 2y is equal to 8. Right children? Subtraction, क्योंकि equated के साइन सेम है तो ये कट गया. x is equal to ये भी -2. x2 आ गया, इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. सो पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन if this is your first equation. So we will get y is equal to 5 minus 2x. Put the value. 5 minus 2 2s are 4, that is 1. So this is how you will find out. So you can do the rest of the two parts on your own. Let's do it for the next question. Let me rub this for you and then let's continue the second question. In second question it says find the value of a and b. Let me take the red color, it is more visible. तो क्वेश्चन कहता है a और b की वैल्यू फाइंड करो अगर इक्वेशंस का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है. सो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हमें मैथमेटिकली पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मीन्स a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. सो यानी कि 2 by a minus b, a2 की वैल्यू ये होगी, x का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 3 अपॉन a plus b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a plus b minus 2. सो नाउ लेट्स सॉल्व. 3 इक्वेशन है तो किसी भी दो को आप इक्वेट कर लीजिए. तो सबसे पहले मैंने ये दोनों को इक्वेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ट्वाइस ऑफ a plus b is equal to 3 into a minus b. ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. So let's find out. So can I say 2a minus 3a is equal to minus 2b minus 3b. So check करो क्या आया. Minus a is equal to minus 5b.
यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 5b आ गई। अब आप चेक करो कि इसको हम किसी और से फाइंड आउट किसी दूसरी इक्वेशन से इक्वेट करने के लिए, कैन आई इक्वेट द नेक्स्ट इक्वेशंस, दैट इज 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a plus b minus 2. So 3 into, again cross multiplication, 3a plus b minus 2 equals to 7 into a plus b children. अब a की वैल्यू 5b पुट कर दो तो क्या आएगा, 3 into 5b plus b minus 2 equals to 7 into 5b plus b, right? Substitution method मैं use कर रही हूँ. So 3 into, this is 5 3s are 15b plus 1b. Can I write it directly? 16b minus 2 is equal to 7 into 6b. अब आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है. 6 3s are 18, 1 3 4 48b minus 3 2s are 6 42, right? So check करिए, 48b minus 42b is equal to 6. So 8 में से 2 subtract करोगे तो क्या आएगा, 6. 6b is equal to 6. So you know that the value of b is 1. b 1 आ गया है, यहाँ पुट कर दीजिए तो a जो है वो क्या आ गया, 5 आ गया. So this is how you can solve the value of a and you can get the value of a and b children. All right. सपोज करिए आपको आगे करना है, लेट्स मूव अहेड. सेम वे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आई मीन सेकेंड पार्ट, 2 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन. अगेन हमें नो सोल्यूशन का फंडा पता ही है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. So we will not consider this. So 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1. Just cross multiply children. 3 into k minus 1 is equal to 1 into 2k minus 1. So it is 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. Just simplify. 3k minus 2k is equal to 3 minus 1. So this is k is equal to 2. So this is the value which we have got. Right children? अब थर्ड तो क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना ही नहीं है, सब्सटीट्यूशन से आपको सॉल्व करना आता ही है. फॉर यू आप सॉल्विंग आप खुद कर सकते हो. फर्स्ट पार्ट, a part of a monthly hostel charges is fixed and remaining depends upon the number of days one has taken food. So let the fixed charges equals to rupees x, और पर डे फूड अगर हमने लिया है तो जो चार्जेस लग रहे हैं दैट इज रुपीज y. Okay, now let's go ahead. When a student takes food for 20 days, she has to pay 1,000 rupees. So can I say x plus 20y equals to 1,000? That is your first equation. Whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees. That is your second equation. Obviously solving आपको clearly दिख रहा है किससे ज़्यादा आसान है. ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वेटेड है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, y आ जाएगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, x आ जाएगा. ऑल राइट चिल्ड्रन. सो ऐसा एक सेम क्वेश्चन हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं जिसमें टैक्सी में फिक्स चार्जेस होते हैं और फिर चार्ज पर किलोमीटर होता है. इट इज़ जस्ट द सेम, सिर्फ वर्डिंग चेंज हुई है. राइट. Similarly, second question B we have already done. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. So again, let numerator equals x, denominator equals y. So fraction क्या हो जाएगा? Fraction will be x by y children. अब पहला, according to the question, if 1 is subtracted from the numerator, fractions become 1 by 3. Cross multiply करिए.
3x minus 3 is equal to y, right? That is your first equation. चाहो कन्वर्जन कर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना तो ये पहली इक्वेशन. सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. इफ 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/4, यानी कि 4x इज इक्वल टू y प्लस 8. अगेन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 इज द सेकेंड इक्वेशन. अगेन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, y ऑलरेडी इक्वेटेड है. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, तो किसी में पुट करके y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी. राइट चिल्ड्रन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट फॉर यू. लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट. Yash scored 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for wrong answer. तो हमें यही नहीं पता कि उसने कितने क्वेश्चन राइट आंसर किए हैं. Let right answers equals to let number of, ताकि confusion ना हो. Number of right answers x and number of wrong answers equals y. अब वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यश के 40 नंबर आए हैं, 40 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, सॉरी 40 मार्क्स आए हैं टेस्ट में, इंग्लिश नहीं लिखा हुआ. 3 मार्क्स उसे राइट आंसर के मिलते हैं, तो यानी कि टोटल मार्क्स उसे कितने मिले? 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स जो नंबर ऑफ राइट आंसर है, और वो एक नंबर लूज करता है फॉर रॉन्ग आंसर. सो 1 इंटू वाई, एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक गलत आंसर के लिए, तो y के लिए कितने होंगे? यूनिटरी मेथड, 1 इंटू वाई. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिले और एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, then Yash would have scored 50 marks. So this is my second equation. Again equating the coefficient ज़्यादा आसान है. इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास x आ जाएगा, फिर किसी एक में पुट करके y आ जाएगा. सो उसने क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट. सो निकालना क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस मीन्स चिल्ड्रन x और y निकाल के नहीं छोड़ देना, हमें x प्लस y निकालना है. तो यहाँ गलती हो जाती है. 99% बच्चे सिर्फ x और y निकाल के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट दे हैव आस्क्ड कि कितने क्वेश्चन हैं टेस्ट में, तो x प्लस वाई आएंगे, यानी कि करेक्ट आंसर्स प्लस रॉन्ग आंसर मिला के जितने टोटल क्वेश्चन है. राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू, थर्ड पार्ट फॉर यू. ऑल राइट, लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन. For the fourth question, places A and B are 100 kilometers apart on highway. One car starts from A and another car starts from B in the same time. Let me just draw a figure and show you, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बिना फिगर के समझना. 2 places हैं जो कि 100 किलोमीटर्स अपार्ट है, A और B. तो ये डिस्टेंस मुझे 100 किलोमीटर गिवन है. If a car starts in the same direction at different speed, अब एक कार A से स्टार्ट करती है और एक कार B से स्टार्ट करती है in the same direction. So ये मैं केस 1 ले रही हूँ, जब cars are in same direction. So अगर कार सेम डायरेक्शन में होगी, एक कार इधर जा रही है और दूसरी कार इधर जा रही है, तो ऑब्वियसली बेटा जब उन्हें कहीं मीट करना होगा तो वो आगे किसी पॉइंट C पे जाके मीट करेंगे. सपोज दिस इज C, ओके, एंड वी डोंट नो. सो कैन आई से देयर इज कार A एंड कार B. जो कार A से चल रही है वो कार A बोल देते हैं, और जो B से चल रही है दैट इज कार B. If the car travels in the same direction at different speeds, तो हमें स्पीड नहीं पता. So let speed of car A equals to x kilometer per hour and speed of car B equals to y kilometer per hour.
Now the question says if they travel in the same direction at different speed they meet in 5 hours. तो उसको उनको कार्स को टाइम कितना लग रहा है, कार जो ए में ट्रैवल हो रही है उसको भी 5 आवर्स लग रहे हैं और जो बी से ट्रैवल हो रही है उसे भी 5 घंटे लग रहे हैं और वो कहीं जाके मीट करती हैं पॉइंट सी पे. सो चेक हियर चिल्ड्रन, फ्रॉम द फिगर कैन आई से डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस ए बी equals to AC minus BC minus BC equals to 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 100 गिवन है और हमें डिस्टेंस निकालना आता ही है. फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो कैन आई से डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ए सी, यानी कि जो कार ए ट्रैवल कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, राइट, माइनस ये क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम अगेन 100. So if I take 5 common, can I say x minus y is equal to 100 upon 5? That is 20. So x minus y is equal to 20 is my first equation. Okay. Now let's see what happens in case number 2. Case 2. Cars are in opposite direction. Check karo. If they travel towards each other, opposite matlab towards each other. Let me show you by figure. Again, this is A point, this is B point, distance 100 किलोमीटर ही है, बस कार टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रही है, यानी कि यहाँ है कार A और यहाँ है कार B और वो कहीं जाके बीच में मतलब सेंटर में नहीं, बट A और B के बीच में कहीं मिलेंगे C पोजिशन पे. सो नाउ कैन आई से फ्रॉम द फिगर डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. आई होप आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा कि यहाँ पे हमने जब डिस्टेंस का रिलेशन निकाला था वो दोनों को सबट्रैक्ट करके 100 आया था, क्योंकि एक कार को तेज़ चलना पड़ेगा दूसरी कार से, तभी जाके वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में है. अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो बीच में ही मिल जाएंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा वो होगा 100. सो नाउ दिस विल बी, अब उसको टाइम कितना लग रहा है उसने बताया कि इस कंडीशन में जो टाइम लग रहा है बाय ए एंड बी इज 1 hour. सो कैन आई से x into 1 again, speed into time plus y into 1 is equal to 100. So your second equation is x plus y equals to 100. राइट, अगेन दोनों को ऐड करोगे y y कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके y आ जाएगा. दैट इज हाउ यू विल डू द फोर्थ पार्ट. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रन, ओके. Now let's go to the next question, that is the fifth part. Find the area of a rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. पहले तो हमें length और breadth ही नहीं पता. Let length of rectangle equals x units. Breadth of rectangle equal y units. Now ऑब्वियसली अगर लेंथ एंड ब्रेथ है तो एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का हमें पता ही है. एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो कैन आई से एरिया विल बी x इनटू y चिल्ड्रन. नाउ लेट्स स्टडी केस 1. वो कहता है कि एरिया जो है वो 9 यूनिट से रिड्यूस हो जाता है.
So new area equals to area minus 9. ओके, ये तो हो गया पहली इक्वेशन. और ये कब होता है? इफ लेंथ यानी कि न्यू लेंथ, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3. सो यानी कि जो न्यू एरिया है बेटा वो क्या आएगा? ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, यानी कि x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3. ज़रा ब्रैकेट ओपन कर दो, x इंटू वाई प्लस 3 minus 5 into y plus 3. Just open the bracket. It will be xy plus 3x minus 5y minus 5 3s are 50. Now, can I put it here? Put in 1. So this is new area कितना आया था मेरा? xy plus 3x minus 5y minus 15 is equal to purana area minus 9. So xy minus 9. Let's take everything to the other side. So 3x minus 5y is equal to xy minus 9 minus xy plus 50. So check करिए, xy cancel हो गया. So 3x minus 5y is equal to 15 में से 9 गया 6. This is my फर्स्ट नहीं लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन. ओके, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी 1 मान चुकी हूँ. नाउ सेम वे कैन यू फॉर्म द इक्वेशन फॉर द सेकेंड, आई एम सॉरी, कैन यू फॉर्म द इक्वेशन फॉर द सेकेंड पार्ट ऑल्सो? केस 2 क्या कहता है? लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर. केस 2 सेज if we increase the length, now new length is x plus 3 and breadth by 2 units, दोनों को increase. So again new area क्या आएगा? Same formula, new length into new breadth, that is x plus 3 into y plus 2. Again bracket open करते हैं, x into y plus 2 plus 3 into y plus 2. Just open the bracket. It will be xy plus 2x plus 3y, 3 2s are 6 plus 6. ये आया. अब उसने क्या बोला है? अच्छा, the area increases by 67 units. So can I say new area equals to area plus 67? Again put the values. So this is xy plus 2x plus 3y plus 6 is equal to area, जो कि already xy given था, plus 67. Again check करो, xy cancel हो गया जब उधर लेके जाएंगे. So 2x plus 3y is equal to 67 minus 6, यानी कि 61. That is my third equation. Now you can solve this one, 2 as well as 3. You can solve it by equating the coefficient method. उसको 2 से multiply कर दो, इसको 3 से, पहली equation को 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, right? x के coefficient equate हो जाएंगे, फिर subtract करके y आ जाएगा, y आ जाएगा तो x आ जाएगा, right children? That is how you will do this exercise. Okay, if you still have any doubt in this exercise, you can